Dear students, welcome to Amol Jain Commerce Education. In this lecture, I am continuing with basic of partnership accounting. Account of partnership firm, trading and profit and loss account, profit and loss appropriation account, capital account of partners and balance sheet. इसमें से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपने 11th क्लास में देखा है. इस पार्टनरशिप के अंतर्गत बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. In this lecture, my focus is on profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. First, it is an additional account. Besides trading account and partnership profit and loss account, profit and loss appropriation account is also prepared by partnership firms. It is extension of profit and loss account. After preparation of profit and loss account, profit and loss appropriation account is prepared to show the distribution of the profit. Balance of profit and loss account is transferred to the profit and loss appropriation account. It shows the appropriation of profit. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है बच्चों, ताकि ये शो किया जा सके कि जो नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनरशिप फर्म ने किस तरीके से एप्रोप्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें से कितना हिस्सा उसने पार्टनर्स को दिया है, किस तरीके से दिया है, उसको जानने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें प्रॉफिट जो होता है उसको बांटा जाता है. जबकि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, जो प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा. यानी अगर सिंपल भाषा में बोलूँ बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में वो सारी बातें होंगी जिसको प्रॉफिट को जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. प्रॉफिट पार्टनर्स को इंटरेस्ट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सैलरी कमीशन के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे, और कुछ प्रॉफिट रिजर्व के तौर पे रख लिया जाता है. तो आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न इन द ईयर, द प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इज सोन ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो आता है, और पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग की है तो उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म. जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पहली एंट्री बच्चों ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Interest on capital, there will be two entry. First, interest on capital account debit to partners capital account. Second, profit and loss appropriation account debit to interest on capital account. Interest on capital is a kind of expenditure that is transferred to profit and loss appropriation account debit side. Interest on drawings. Partners capital account debit to interest on drawings account. Interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. Interest on drawing is a income for partnership firm. That is why it is credited to the profit and loss appropriation account. Salaries or commission to partners. Partners salary or commission account debit to partners capital account. Profit and loss appropriation account debit to partners salary or commission account. Transfer to reserve. If some profit are required to be transferred to reserve, then P&L appropriation account debit to reserve account. And distribution of profit. After all the above adjustment, if there is any profit remaining, that profit will be distributed to the partners in their profit sharing ratio. Profit and loss appropriation account debit to partners capital account. यानी जितने ऊपर एडजस्टमेंट मैंने बोले बच्चों, इंटरेस्ट ऑन जो नेट प्रॉफिट आपने अर्न किया है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को, सैलरी बोनस कमीशन दे दिया, रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड to partners as per their profit and loss sharing ratio. Let's have a question. P and Q are partners. Profit sharing ratio is equal. Firm has taken on rent of rupees 1 lakh per annum a building belonging to P. Firm ने P से एक building rent पे ली हुई है 1 lakh rupees पे. P is also a partner. But remember one thing, when you are giving your building on rent to the firm, you are not giving as a partner, you are giving as a P. P is to get commission at 10% on sales, which is 10 lakh rupees. यानी सेल 10 लाख है
और उसके ऊपर 10% कमीशन पी को मिलना है। क्यूज टू गेट सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 20 इज़ 5 लाख बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। इस 5 लाख रुपीज़ में से रेंट डिडक्ट नहीं हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। यहाँ पे देखेंगे बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। पहले वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर रेंट 5 लाख है, उसमें से रेंट माइनस करेंगे 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट आएगा 4 लाख। रेंट इसलिए घटाना जरूरी बच्चों, रेंट को डिडक्ट करना इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑल द चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। रेंट पे जो किया जा रहा है दैट इज़ अ चार्ज, दैट इज़ एन एक्सपेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज़ 4 लाख रुपीज़। कमीशन कैलकुलेट करते बच्चों, 10 लाख की सेल है, 10% कमीशन है 1 लाख रुपीज़। नेट प्रॉफिट देखिए बच्चों कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर रेंट आया 4 लाख, उसमें पार्टनर्स कमीशन 1 लाख माइनस होगा, पार्टनर सैलरी 50,000, तो 1,50,000 डिडक्ट हो गया। अब बचा है 2,50,000 रिमेनिंग प्रॉफिट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज़ इक्वल। तो पी का जो शेयर है बच्चों दैट विल बी 1,25,000 एंड क्यू शेयर विल ऑल्सो विल बी 1,25,000। PSR इज इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए बच्चों इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले डेबिट साइड में पार्टनर्स को एज ए पार्टनर आप जो दे रहे हैं वो सब डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो पहला देखिए टू पार्टनर सैलरी Q 50,000, टू पार्टनर्स कमीशन P 1 लाख। इधर देखिए बच्चों क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख का प्रॉफिट था जिसमें से 1 लाख का रेंट माइनस किया चार्ज के तौर पे, तो नेट प्रॉफिट बचा 4 लाख। 4 लाख में से 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट 2,50,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो 125 125 1,25,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। रिमेंबर वन थिंग, एज ए पार्टनर फर्म पार्टनर को जो कुछ भी देती है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में होता है, और पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और नेट प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये शो करता है कि फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को, आखिर उस प्रॉफिट को जो ओनर है वो तो पार्टनर्स ही हैं, तो हाउ दैट प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स that is shown by the profit and loss appropriation account. In case of any doubt, send message, subscribe my channel for more lecture. Thank you.